Okay, welcome to all in Get Plus here. We have to study here steady state error. Before going to the steady state error, first we have to need to understand what is the error. Error means what? When we talk about the closed loop control system, means what is happening in the closed loop control system. In closed loop control system, controlling signal is operated until the actual output is equal to desired output. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे this one is what? This one is output here and this one is input, and that is called also reference input here. Means here controlling signal is operated until the actual output is equal to desired output. That is the main thing in the closed loop control system. And when we talk about the error here, suppose if I represent with ET equals to what? First one is the reference input, that is desired here, and output is what? Actual output. ये ऑपरेट कब तक करता रहेगा? जब तक until the actual output is equal to desired output. जैसे ही एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू डिजायर आउटपुट हो गया तो एरर की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई. बट हमें सपोज अंटिल एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू डिजायर आउटपुट नहीं हुआ वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? एरर की कंडीशन अकर हो जाएगी. ओके, सपोज इफ आई राइट हियर ET इक्वल टू व्हाट? सपोज इनपुट इज रेफरेंस इनपुट इज RT and what? Output is what? CT. This is way to write here is error here. Okay, this one is the error. Error means reference input minus output here. Okay, suppose both are same, then error is 0 here. And next, suppose if I want to find out the steady state error, for steady state we have to apply here what? Apply final value theorem. What is the final value theorem? Final value theorem is what? Suppose if I want to find out the steady state error, then what we have to write here first, that is E t tending to infinite, that is equals to what? Limit s tending to 0. If t tending to infinite means in s domain s tending to 0, s es. This one is called as steady state error. And when we apply the steady state error, that is the main thing in the system here. When we apply, and what is the condition for the steady state error here? Okay, first we have to understand here what is the condition for final value theorem. फाइनल वैल्यू थ्योरम कंडीशन इज व्हाट? यहाँ पे कई चीज़ें बोला जाता है कि यहाँ पे इसका रियल पार्ट एस क्या होना चाहिए, इसके पोल्स कहाँ अप्लाई करेंगे. सपोज दिस इज P1, तो इसके पोल्स कहाँ अप्लाई करने चाहिए? लेफ्ट साइड लाई करने चाहिए. ठीक है, कोई भी पोल्स इस पे लाई नहीं करना चाहिए, दूसरी कंडीशन है. ठीक है, और एक कंडीशन क्या होती है? इस पे जो है रिपीटेड पोल नहीं लाई करना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी पोल लाई नहीं करना चाहिए राइट साइड. तो मैं इसका पूरे समराइज करके मैं एक डिफिनीशन बताऊँगा, सबको सारे कंडीशन उसमें फिलफिल होगी. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज इफ आई एस इज रिप्रेजेंट विथ व्हाट? सिग्मा प्लस जे ओमेगा. ठीक है, एक बार इसको समझना क्या है, फाइनल वैल्यू थ्योरम कब अप्लाई करते हैं ये समझ गए, सब कुछ समझ चुके हो. ठीक है, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, एंड वेयर सिग्मा इज रियल पार्ट एंड दिस वन इज व्हाट? इमेजिनरी पार्ट. फर्स्ट one thing is important here, what sigma is the real part, then what? If sigma is less than 0, I write here strictly 0. if I here मैं write, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ सिग्मा इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या इंक्लूड हो चुका है? सिग्मा इक्वल्स टू 0 इंक्लूड हो चुका है. बट ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. कौन सी कंडीशन हम लेंगे यहाँ पे? सिग्मा इज लेस देन 0. व्हेन सिग्मा इज लेस देन 0, देन वी कैन अप्लाई द फाइनल वैल्यू थ्योरम, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई द फाइनल वैल्यू थ्योरम. एंड सिग्मा किसकी सिग्मा की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट SES, मीन्स व्हेन poles of SES or the real part of SES is negative, then we can apply the final value theorem, otherwise we cannot apply the final value theorem here. Okay, let's take example here. Suppose GS equals to what? GS equals to, suppose if I take here 1 upon S minus 1 here, and if I want to find out the SGS, that is equals to 1 upon S minus 1. What is the pole? S equals to 1. If pole is S equals to 1 means what about the real part? Real part is greater than 0. If real part is greater than 0, we cannot apply the final value theorem. Suppose if I write here 1 upon S square plus 1, then what is the poles here? S equals to plus minus j here. Okay, if it is S equals to plus minus j, what about the sigma? Sigma is 0. Again we cannot apply the final value theorem, because मैंने बोला था यहाँ पे sigma should be strictly less than 0. If it is strictly less than 0, then as sigma equals to 0 condition is not defined here. Okay,
आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें भी फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सर कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं थोड़ा सा। सपोज मैं ले लूँ जी एस इक्वल टू वट 1/s plus 1 here, okay, 1/s plus 1, then what we can write here, if I write here s gs, then s cancel, that is 1/s plus 1. What about the poles? Poles is at s equals to -1, poles is s equals to -1, then we can say here what, here sigma is less than 0. If sigma is less than 0, then we can apply the final value theorem. Okay, and one thing is also important here, what, one thing is also important, what, यहाँ पे मैं बात कर रहा था क्या, सिग्मा लेस देन 0 होना चाहिए। सिग्मा लेस देन 0 होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसका एस जी एस का पार्ट क्या होना चाहिए, शुड बी नेगेटिव, सिग्मा शुड बी नेगेटिव, मीन्स ऑल द पोल्स मस्ट बी लाई ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस एंड नो पोल लाई ऑन द जे ओमेगा एक्सिस एज वेल एज राइट साइड, मीन्स जे ओमेगा एक्सिस पे भी लाई नहीं करना चाहिए। और कहाँ पे नहीं लाई करना चाहिए, किस पे, राइट साइड, केवल किस पे लाई करना चाहिए, नेगेटिव रियल पार्ट पे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ चुका होगा कहाँ पे अप्लाई करेंगे और कहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे। ओके, स्टेडी स्टेट एरर, दैट इज व्हाट, ई इनफाइनाइट, वी कैन राइट हियर व्हाट, ई एस इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन इज द स्टेडी स्टेट एरर and s here limit is s tending to what, 0 here, then what we can write, we can write, if I take the Laplace of this one, if I take the Laplace of this one, then what we can write here, rs and what, cs, clear। और इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, s मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 here, एंड इफ आई राइट हियर, सिंप्लीफाई मैं करूँगा तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, this one is limit s tending to 0. If I take common here rs here, then what we can write, 1 minus what, c upon r. This one is what, this one is the closed loop transfer function, means we can write here steady state error, that is equals to limit s tending to 0 what, s rs and 1 minus closed loop transfer function ts here. This one is the formula to finding the closed loop transfer function. This is the formula to find the steady state error when closed loop transfer function is given, TS is given. ओके, तो ये सबसे बेसिक फार्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सपोज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। इसको कन्वर्ट नहीं करना हमें जीएस में, ठीक है। तो ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे फार्मूला डिजाइन होंगे। अब हम बात करते हैं क्या, कैसे फार्मूला डिजाइन हुए हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं क्या ले लूँ, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसी की बात कर लेते हैं। ये दिस वन इज द यूनिटी फीडबैक हियर, एंड इफ इट इज यूनिटी फीडबैक देन व्हाट अबाउट द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू व्हाट, c by r equals to g upon 1 plus g here, okay, this one is 1 upon 1 plus g, then steady state error equals to what, limit s tending to 0 here, s rs 1 minus g upon 1 plus g, clear, limit s tending to 0 here, s rs, okay, if I simplify here, this one is g cancel here, 1 upon 1 plus g. This one is the second formula to finding the steady state error here, okay, means input is given here, then first we have to take the Laplace. What is the rs here, what rs is mod, means this is the Laplace transform of input here, okay, and 1 upon 1 plus g, and this one is the open loop transfer function here. This one is the second formula, this one is the first formula here, okay, and if I want to find out the third formula, that is what, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ थर्ड फार्मूला की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, okay, steady state error equals to what, steady state error equals to limit s tending to 0 s rs, ठीक है, 1 upon 1 plus gs, यहाँ पे हम बात कर चुके थे, ठीक है। ये थर्ड फार्मूला के बाद, ठीक है, दो फार्मूले हो चुके हैं। यहाँ से हम बात करना चाहेंगे, ये फार्मूला किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, हमें जीएस गिवन होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे एस आर एस देंगे। हम थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आर एस ऑलरेडी क्या है, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट हियर, ओके।
ओके, यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर इक्वल्स टू व्हाट? स्टडी स्टेट एरर, सपोज इफ आई टेक हियर GS इक्वल्स टू व्हाट? GS इक्वल्स टू गिवन हियर, suppose anyone 1 upon s plus 1 here, anything, and suppose okay, suppose GS equals to given here 1 upon s plus 1, then just put the value of GS here and again आउटपुट पूछेगा किसके लिए? स्टडी स्टेट एरर पूछेगा किस टाइप के? यूनिट स्टेप, तो 1/s, ठीक है। रैंप पूछेगा तो 1/s², तो यहाँ पे हम पुट करके डायरेक्ट यहाँ पे स्टडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। बट जो मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड किया था वहाँ पे क्या था? वहाँ पे गिवन था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस जी, तो मैंने वहाँ पे पुट किया तो क्या आ चुका है? यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करना चाह रहे हैं कुछ और चीज़ों का। सपोज मैं डिफरेंट टाइप इनपुट ले लूँ। डिफरेंट टाइप इनपुट की बात करेंगे तो क्या क्या इनपुट हो सकते हैं हमारे पास? सिंपल अगर टेस्ट सिग्नल की बात करें तो हमारे पास हो सकता है एक यूनिट स्टेप, सेकेंड क्या हो सकता है? रैंप हो सकता है, और नेक्स्ट क्या हो सकता है? पैराबोलिक हो सकता है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। यूनिट स्टेप की बात करेंगे तो दिस वन इज व्हाट? एनी कांस्टेंट दैट इज 1/s लाप्लास ऑफ दिस वन इज व्हाट अबाउट दिस वन इज राइट एज t ut, then Laplace of this one is 1/s², and what about pt? This one is right as what? Suppose this one is right at t²/2, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा? 1/s³। ध्यान रखना जनरली मैं इसको बनाऊंगा t²/2 फॉर्म में, थोड़ा सा और इजी करने के लिए t²/2 के फॉर्म में इसलिए मैंने बनाया कि अगर लाप्लास बात करें t⁴n का लाप्लास क्या होगा? n अपॉन s⁴n+1 ईयर, एंड इफ इट इज t⁴2 ईयर देन 2 अपॉन s⁴3, ठीक है। तो मैं सिंपली केवल 1/s³ लिखना चाहूँगा तो 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिंपली मैं यही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जनरली हमेशा t²/2 फॉर्म में बनाएंगे, नहीं गिवन होगा तो बनाएंगे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, बट बनाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा ईजी करने के लिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात हो चुकी है यूनिट स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक इनपुट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्या? स्टडी स्टेट एरर की बात करेंगे। चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं किसके लिए? यूनिट स्टेप के लिए। स्टडी स्टेट एरर बात करेंगे। मैंने यहाँ पे एक और थोड़ा सा जनरल में ले लूँ तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? AUT मीन्स एनी कांस्टेंट हियर, एंड इफ इट इज a इक्वल्स टू 1 दिस वन इज द यूनिट स्टेप फंक्शन, एंड इफ n इज एनी कांस्टेंट देन वी कैन से हियर दिस वन इज द स्टेप फंक्शन, एंड लिमिट s tending to 0 here, and what is the Laplace of this one? A upon s, and s here, and this one is what? 1 upon 1 plus gs, okay. This one is s is cancel here, then we can write here steady state error equals to what? Limit s tending to 0 a upon 1 plus gs। हमें बता दो यहाँ पे a कोई फंक्शन है क्या? s का नहीं, ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट लिखेंगे a अपॉन 1 प्लस लिमिट s टेंडिंग टू 0 gs, ओके, s टेंडिंग टू 0 gs, एंड दिस वन इज आल्सो राइट एज a अपॉन व्हाट? 1 प्लस kp, एंड kp इज आल्सो कॉल्ड एज पोजीशन एरर कांस्टेंट। दिस वन इज कॉल्ड एज पोजीशन एरर कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ पे a दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे क्या मैं ले लूँ? ut1 ले लूँ, क्या ले लूँ? केवल ut ले लूँ, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 आ चुका है, तो ये फार्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा? देन स्टडी स्टेट एरर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस kp। दिस इज द स्टडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। दिस वन इज द स्टडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट हियर, ओके, एंड वेयर kp इज व्हाट? लिमिट s टेंडिंग टू 0 एंड gs, okay. Next come to the question here, okay. First हम इसकी बात कर ले, रैंप की बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो अभी हम रैंप की बात करना चाहेंगे, तो रैंप RT इक्वल्स टू व्हाट?
Okay, suppose if I take input here, what input is, suppose if I take RT means ramp input RT, and what is the Laplace of this one? Laplace of this one is 1 upon s square, and if I apply the formula here, limit s tending to what? S tending to 0, s into what? 1 upon s square, and this one is 1 upon 1 plus gs. क्लियर? यहाँ से क्या कैंसिल हो चुका है? यहाँ से कैंसिल हो चुका है, एस एस कैंसिल हो चुका है, एस एस कैंसिल हो चुका है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एस एस कैंसिल हो चुका है, तो 1 अपान एस का टर्म आ चुका है, 1 अपान एस का टर्म आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस प्लस एस जी एस. ओके, एंड इफ आई पुट एस इक्वल टू 0, दिस टर्म इज गोज थ्रू 0, then directly we can write here 1 upon limit s tending to 0, what? S gs, and this one is what? This one is called as 1 upon kv, and kv is what? Velocity error constant. This one is called as velocity error constant here. Okay, this is the formula for finding the steady state error when ramp input is given, and this one is 1 upon kv, unit ramp input is given. Okay, then 1 upon kb, and kb is what? Limit s tending to 0 as gs here. Okay, next come to the parabolic input here. पैराबोलिक की बात करेंगे यहाँ पे. अब हम बात करने वाले हैं किसकी? पैराबोलिक इनपुट की. pt equals to what? t square by 2, and what is the Laplace of this one? 1 upon s cube. What is the Laplace of this one? 1 upon s cube. Okay, what is the formula for steady state error? हम डिस्कस कर चुके हैं. लिमिट s टेंडिंग टू 0, s rs, and what? 1 upon 1 plus gs here. Okay, if I put here what? 1 upon s cube, this one is what? s cancel, we can write here limit s tending to 0, 1 upon s स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे s स्क्वायर होगा तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ 1 अपॉन एस स्क्वायर जी एस, जैसे हम पहले कर चुके हैं 1 अपॉन व्हाट? के ए. व्हाट अबाउट के ए? के ए क्या है? के ए इज व्हाट? एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट. एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट हियर. अब हम बात करने वाले हैं किसकी? के पी, के वी एंड के ए. This one is called as position error constant, this one is called as velocity error constant, this one is called as acceleration error constant here. Okay, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा ग्रेटर होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. ओके, अब यहाँ से कुछ चीज़ें और बात करते हैं, थोड़ा सा हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ मूव करना चाहते हैं. तो यहाँ पे के पी, के वी एंड के ए, यहाँ पे हमें बता दो के पी की वैल्यू सपोज कांस्टेंट आ रही है, के पी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा. ठीक है, और फाइनाइट वैल्यू आएगा मीन्स क्या हम बोल रहे हैं? ट्रांजिएंट रिस्पांस डाई आउट होने के बाद कुछ डेविएशन बचा जा रहा है. केपी का सिंपली मीनिंग यही है कि हमारा आउटपुट कितना डेविएट हो रहा है. ठीक है, मीन्स एक्चुअल आउटपुट और डिजायर आउटपुट की बात करेंगे तो कितना जो है क्या हो रहा है, हमारा एक्चुअल आउटपुट डिजायर आउटपुट से कितना डेविएट हो रहा है, वही रिप्रेजेंट करेगा के पी, के वी एंड के ए. ठीक है, इसकी वैल्यू अगर किसी की भी फाइनाइट आती है तो इसका सिंपली मीनिंग यही है कि हम स्टेडी स्टेट में क्या होता है, एक हमेशा एरर हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी. ठीक है, व्हेन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज डाई आउट. ठीक है, एक पोजीशन कांस्टेंट हमेशा क्या बना रहेगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये सिंपली इसका मीनिंग यही है कि अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू भी क्या आएगी? फाइनाइट आएगी. सपोज के पी की वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे हम स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करेंगे. तो सबसे पहले कुछ चीज़ें और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. अभी हम बात कर रहे थे किसकी? स्टेडी स्टेट एरर की. इसका फार्मूला हमने देखा था क्या? स्टेडी स्टेट एरर इक्वल्स टू व्हाट? यूनिट स्टेप की बात करेंगे तो क्या हो गया था? 1 अपॉन 1 प्लस के पी. ठीक है, रैम्प की बात किया था तो 1 अपॉन व्हाट? के बी, एंड पैराबोलिक के लिए 1 अपॉन के होता. एंड के Kp, Kb and K is also called as DC gain. This one is called as DC gain. DC gain.
and this one is DC gain for type 0 system, this one is DC gain for type 1 system and this one is DC gain for type 2 system. ठीक है, तो कभी भी DC गेन मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, जनरली कंट्रोल सिस्टम में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. DC गेन क्या होता है? S इक्वल्स टू व्हाट? रियल प्लस जे ओमेगा. और DC गेन की बात करेंगे तो DC गेन क्या होता है? कांस्टेंट होता है. केवल ये होता है तो क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, बट इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा तो सिग्मा इक्वल्स टू 0. और ये पार्ट होता तो क्या होता है? ऑसिलेट होता, बट ये ऑसिलेट भी नहीं करता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो फॉर DC गेन S इक्वल्स टू क्या पुट करना पड़ता है? 0 पुट करना पड़ता है. तो हम बात करेंगे अगर टाइप 0 सिस्टम होगा S+1 तो इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे S इक्वल्स टू 0. बट यहाँ पे अगर टाइप 1 सिस्टम होगा तो क्या इसका DC गेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे S इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे. इसका सबसे पहले क्या फार्मूला लेंगे? KB निकालेंगे. KB क्या होता है? इसमें S का मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन पुट करेंगे लिमिट S टेंडिंग टू 0, S कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो ये चीज़ें समझने वाली है. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्या, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेके और क्लियरिटी लाना चाहते हैं इसमें हम. इसमें हम क्वेश्चन लेके क्लियरिटी लाएंगे तो कैसे लाएंगे हम बात करना चाहेंगे उस पर. ठीक है, सपोज हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे सपोज हमारे पास GS गिवन है. क्या गिवन है? GS क्या गिवन है? 1/S+1. ठीक है, हम बात करना चाहेंगे क्या? स्टेडी स्टेट एरर. किसके लिए? यूनिट रैंप एंड पैराबोलिक. सबसे पहले फार्मूला देखते हैं. स्टेडी स्टेट एरर इक्वल्स टू व्हाट? 1/1 प्लस KP. KP कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिमिट S टेंडिंग टू 0. GS इज 1/S+1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कांस्टेंट आ गया. तो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या हो गई? 1/2. क्लियर? दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0.5 आ गया. यहाँ पे हम बात करेंगे रैंप के लिए तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या निकाल फाइंड आउट करेंगे? KV फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहूँगा? यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगा. KV फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लिमिट S टेंडिंग टू 0 S GS हो जाएगा. यहाँ पे GS की वैल्यू पुट करेंगे 1/S+1, अगेन पुट करेंगे S इक्वल टू 0, दिस वन इज 0. देन स्टेडी स्टेट एरर फॉर व्हाट? रैंप इनपुट इज इनफाइनाइट. ओके, फॉर पैराबोलिक मैं पैराबोलिक की बात करूंगा तो क्या फाइंड आउट करूंगा? K फाइंड आउट करूंगा. लिमिट S टेंडिंग टू 0 S स्क्वायर एंड 1/S+1. S क्या हो जाएगा? पुट करेंगे 0 तो इसकी वैल्यू 0. स्टेडी स्टेट एरर फॉर पैराबोलिक, अगेन दिस वन इज इनफाइनाइट. तो क्या समझ पा रहे हैं हम यहाँ से? कुछ चीज़ें समझ पा रहे हैं. यहाँ पे अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है. फर्स्ट ऑर्डर मैंने क्यों बोला? यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें और बात करें. जैसे यहाँ पे 1/, यहाँ पे S+λ1 S+λ2. ठीक है, कंट्रोल में बात हो चुकी है S⁴ एंड 1+τNS 1+τ2S ऐसा कुछ गिवन है. तो जो यहाँ पे S है S⁴, दिस वन इज इंडिकेट द टाइप, दिस वन इज इंडिकेट द टाइप हियर. ओके, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, दिस वन इज इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. यहाँ पे अगर बात करें जैसे सपोज हमारे पास गिवन है 1/S+1, टाइप इज व्हाट? टाइप इज 1. एंड व्हाट अबाउट द ऑर्डर? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/S² प्लस S. और हाईएस्ट पावर क्या है? 2. तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो जाएगा और टाइप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करना चाह रहे थे क्या, यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर आ चुका है. किसके लिए?
हम देख रहे थे यहाँ पे ऑर्डर क्या था, ऑर्डर इसका 1 था, टाइप क्या है 0 है। इफ टाइप 0 एंड ऑर्डर इज 1, टाइप 0 ऑर्डर इज 1, देन स्टडी स्टेट एरर किसके लिए केवल फाइंड आउट किया, यूटी के लिए, और रैम्प एंड पीटी के लिए क्या आ रहा था, इसके लिए दोनों के लिए स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट। इसका कहने का मीनिंग क्या है, सिंपली कि हम जो है फर्स्ट ऑर्डर से जो है हम इस टाइप के इनपुट को ट्रेस नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है यार, एरर यहाँ पे 0 आ रहा है, सॉरी एरर यहाँ पे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसका सिंपली मीनिंग यही है कि हम क्या रहे, फाइनल वैल्यू को रीच नहीं कर रहे हैं, मीन्स क्या, एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू डिजायर आउटपुट। तो हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से जो इसको ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज मैं इसका टाइप इंक्रीज कर दूँ, थोड़ा चेक करते हैं और क्या होगा यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे टाइप इंक्रीज कर दूँ तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं एस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, इफ आई इंक्रीज द टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप मीन्स यहाँ पे एस टू पावर क्या है, 1 है, एस टू पावर 1 है, तो कौन सा टाइप सिस्टम है, दिस वन इज द टाइप 1। एंड व्हाट इंडिकेट द टाइप, टाइप इंडिकेट द नंबर ऑफ इंटीग्रेटर यूज इन द सिस्टम, एंड इफ इट इज एस टू पावर 1 देन 1 integrator used, if it is s to power 2 there is the 2 integrator used in the system here, and it's one also indicate the what number of poles lying on the origin here। ओके, हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे किसकी, अब यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे स्टेडी स्टेट एरर फॉर द यूनिट स्टेप रैम्प एंड पैराबोलिक। देन व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू डू हियर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द केपी, केपी इज व्हाट, लिमिट s tending to 0, if I put s equals to 0 here, this one is infinite, and if it is infinite then steady state error is 1 upon infinite, that is tends to 0। अब हम बात करना चाहेंगे किसकी, रैम की बात करेंगे। रैम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द केवी, लिमिट s टेंडिंग टू 0 व्हाट, s इंटू 1 अपॉन s प्लस 1, ये कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s पुट करूँगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। पैराबोलिक के लिए बात करेंगे तो व्हाट, के ए, लिमिट s टेंडिंग टू 0, दिस वन इज s स्क्वायर इंटू 1 अपॉन s प्लस 1, यहाँ से क्या कैंसिल हो चुका है, एक s कैंसिल होगा, अगेन दिस वन इज 0, देन स्टेडी स्टेट एरर इज इनफाइनाइट, स्टेडी स्टेट एरर इज इनफाइनाइट यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें और, क्या बात करना चाहेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे देख रहे हैं हम टाइप हमने एक इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी, यहाँ पे कुछ फाइनाइट आ चुका है और यहाँ पे क्या आ चुका है, इनफाइनाइट आ चुका है। तो हम बोलेंगे इफ इट इज़ ऑर्डर 2 एंड टाइप 1 सिस्टम देन वी कैन फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर ओनली व्हाट, रैम्प इनपुट, एंड व्हाट अबाउट द पैराबोलिक इनपुट, स्टेडी स्टेट एरर इज इनफाइनाइट। तो हम बोल सकते हैं कि टाइप 1 और ऑर्डर 2 सिस्टम से हम किस टाइप के इनपुट को ट्रेस कर सकते हैं, यूनिट स्टेप एंड व्हाट, रैम्प इनपुट। यूनिट स्टेप की बात करें तो किस टाइप के इनपुट को, सडन टाइप इनपुट को हम ट्रेस कर लेंगे, और रैम्प मीन्स वेलोसिटी टाइप इनपुट को, ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, तो उसको हम ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। बट एक्सेलरेटिंग टाइप इनपुट को हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेलरेटिंग टाइप इनपुट मीन्स क्या होता है, जिसका वेलोसिटी क्या होता है, टाइम टू टाइम इंक्रीज करता जाता है, जैसे हम मिसाइल जो लॉन्च करते हैं वो किस टाइप के इनपुट में रिप्रेजेंट हो जाएगा, दिस वन इज द पैराबोलिक, ओके, मीन्स जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी टाइम टू टाइम। ओके, हम बात करना चाहेंगे दिस वन इज द टाइप 1, एंड व्हाट अबाउट द, इफ आई टेक हियर जीएस इक्वल्स टू व्हाट, इफ आई टेक जीएस इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 1, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे टाइप 2 हो चुका है, तो हम बात करना चाहेंगे केपी की अगेन हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, देन स्टेडी स्टेट एरर इज 0। यहाँ पे बात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, केवी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एस तो कैंसिल होगा बट एक एस डिनोमिनेटर में रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, अगेन ये स्टेडी स्टेट एरर इज 0। टेबल की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, यूटी आर टी, एंड नेक्स्ट वन इज पैराबोलिक इनपुट। यहाँ पे मैंने टाइप क्या लिया, टाइप 0, टाइप 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे टाइप 0 के लिए देखा था मैंने, क्या था स्टेडी स्टेट एरर, 1 अपॉन 1 प्लस के पी,
यहाँ पे क्या था इन्फानाइट, यहाँ पे इन्फानाइट आ गया था। टाइप 1 के लिए क्या था 0, इसकी वैल्यू क्या थी 1/kV, इसकी वैल्यू इन्फानाइट। टाइप 2 के लिए क्या होगा 0 0 एंड दिस वन इज 1/kA। और जैसे ही टाइप और इंक्रीज करेंगे तो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या होने लगेगी 0। इसको जो है माइंड में हमेशा रखना है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे टाइप इंक्रीज करते जा रहे हैं, टाइप इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इन्फानाइट आ रहा था, यहाँ पे कांस्टेंट आने लगा, अगेन यहाँ पे 0 होने लगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूँ, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है ये माइंड में होना चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे तो कैसे आता है क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा क्या, जी एस इक्वल टू गिवन है क्या 1/s+1, ठीक है। और हमारे पास इनपुट दिया आर टी इक्वल टू क्या गिवन है 2 + 40 + t²। We have to find the steady state error for the input to 2 + 40 + t²। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका लाप्लास फाइंड आउट करेंगे, फिर फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला क्या है ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस आर एस ईयर एंड दिस वन इज 1/1 + GS, ओके। तो इसका लाप्लास लेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो आइडिया होता है, ठीक है, मेथड है यहाँ पे, लेकिन हम कुछ आइडिया तो होना चाहिए। शॉर्टकट अप्रोच हमारा, शॉर्टकट अप्रोच में जो पहले प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस करा था, अभी इसी में क्या मैं डिस्कस कर रहा था, ये कौन सा टाइप है टाइप 1 सिस्टम में, टाइप 1 है। टाइप 1 है तो यूनिट स्टेप के लिए स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्ट 0 कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो इसके लिए 0 हो चुका है, इसके लिए क्या जाएगा, इसके लिए डायरेक्ट हम लिखेंगे 1/ दिस वन इज व्हाट के की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनिट रैंप नहीं है 4 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 4/व्हाट केवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एस टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे और एस से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 4 आ चुकी है। कैलकुलेट कर लो, यही आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब हम बात करना चाहेंगे t² की। t² की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ चुका है इन्फानाइट, एक भी इन्फानाइट है तो सारा कहाँ चला जाएगा इन्फानाइट आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले चेक करेंगे टाइप क्या है, ठीक है। तो ऐसा यही इनपुट होगा, अगर GS इक्वल टू क्या गिवन होगा 1/s+2 गिवन होगा, अगेन इन्फानाइट हो जाएगा, बिकॉज यूनिट स्टेप के लिए तो आएगा बट रैम्प के लिए क्या हो जाएगा इन्फानाइट हो जाएगा, और एक के लिए भी इन्फानाइट तो इन्फानाइट हो गया। सपोज क्वेश्चन में चेंज करूँ मैं, GS इक्वल टू क्या ले लूँ, GS इक्वल टू 1/s²s+1 ले लूँ। यहाँ पे 1/s²s+1 ले लिया, तो ये टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 2 में क्या होता है, इसके लिए तो 0 हो जाएगा और इसके लिए भी 0 हो जाएगा स्टेडी स्टेट। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, केवल t² के लिए कैलकुलेट करेंगे। और t² के कैलकुलेट के लिए मैंने बोला था इसको हमेशा t²/2 के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। t²/2 के फॉर्म में बनाएंगे तो इसको लिखेंगे t² गिवन था, तो इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किससे 2 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ चुकी है 2/व्हाट, इसमें s² को मल्टीप्लाई करेंगे, s² कैंसिल हो जाएगा, s इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इसी स्टेट एरर इस पूरे इनपुट के लिए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ रहे होगा, आई थिंक सो, ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे टाइप क्या है। जैसे क्वेश्चन में एक और दे दूँ, if GS इक्वल टू गिवन ईयर व्हाट 1/s⁴ s+4 and s+1 and input is RT equals to what 4 + 8t + 9t²। तो सबसे पहले ये नहीं कि इसको लाप्लास ले फिर सॉल्व करें लास्ट में आंसर आएगा। सबसे पहले डायरेक्ट देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे टाइप क्या है इसका, टाइप 3 है। टाइप 3 है तो हमेशा जो है इन तीनों इनपुट के लिए क्या होगा, हमेशा स्टेडी स्टेट इज 0, डायरेक्ट 0 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। कहने का मीनिंग यही सिंपली है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट, ठीक है। यहाँ पे स्टेडी स्टेट कुछ ऐसा मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, बट यहाँ पे क्वेश्चन 2 वे से हो सकते हैं, 2 मेथड हो सकते हैं इसको, बट मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ किससे, स्टेडी स्टेट एरर से। क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर यूनिट स्टेप इनपुट हियर
मीन्स व्हाट इज द मीनिंग हियर, मीन्स वी आर अप्लाइंग द इनपुट हियर यूनिट स्टेप इनपुट। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या रहा है, आउटपुट क्या होना चाहिए, डिजायर आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट हमारा आउटपुट किसको रीच कर रहा है, केवल 0.8 तक ही जा रहा है। हमारा डिजायर आउटपुट क्या है 1, बट एक्चुअल आउटपुट जो आ रहा है क्या कहाँ तक जा रहा है, 0.8 तक आ रहा है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो 1 को तो रीच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एरर। और कितना एरर आ रहा है, 1 आना चाहिए बट आ क्या रहा है 0.8। ठीक है, 0.8 आ रहा है, तो एरर कितना है 0.2। यहाँ से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, इसको कई मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के, मैं बात कर रहा हूँ स्टेडी स्टेट एरर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ चुका है 0.2। एरर की बात करेंगे, स्टेडी स्टेट एरर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ चुका है 0.2 आ चुका है। ठीक है, अब सिंपली यहाँ से क्या मैं कर लूँ, स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करूँ। ये किसके लिए बात हो रही है, यूनिट स्टेप की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा क्या, पोजीशन एरर कांस्टेंट, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 व्हाट k अपॉन 1 प्लस एस टी। If I put here s equals to 0, this one is 1 upon k upon 1, that is equals to k. Means steady state kp is what, k. Then what is the steady state error? Steady state error is 1 upon 1 plus k. And what is the given here? 0.2. 0.2 means what? 1 by 5 here. 0.2 means 2 by 10, 1 by 5 here. And this one is k plus 1 equals to what? Denominator compare करूँगा, 5 हो गया, तो k equals to क्या हो चुका है 4 हो चुका है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो चुकी है 4 हो चुकी है। ठीक है, अदरवाइज इससे नहीं करना है तो सबसे पहले CT फाइंड आउट करो, मीन्स रिस्पांस फाइंड आउट करो, और उसको स्टेडी स्टेट में कहाँ लेके जाओ, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके 0.8 पे ले जाओ, और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन इज गिवन हियर, ओपेलो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक। दिस वन इज, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, दिस वन इज ओपेलो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। दिस वन इज द सिस्टम। ठीक है, तो धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी चीज़ें, मैं ऐसे ही शॉर्ट ही में लिखता हूँ, फीडबैक दिस वन सिस्टम जी एस इक्वल टू 10 अपॉन एस प्लस 1 एस स्क्वायर एस प्लस 10। वी हैव टू फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द इनपुट हियर व्हाट 2 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर की बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे जी एस इक्वल टू क्या गिवन है, जी एस इक्वल टू गिवन है 10 एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 10 गिवन है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दिस वन इज द टाइप ऑफ द सिस्टम इज व्हाट 2। इफ द टाइप ऑफ द सिस्टम इज 2 देन स्टेडी स्टेट एरर फॉर द स्टेप इज 0, दिस वन इज फॉर 0। और किसके कैलकुलेट करेंगे, केवल 4t स्क्वायर की वजह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो लाप्लास लेके हम सॉल्व करेंगे, बाद में वो आंसर वही आएगा, तो हम शॉर्टकट अप्रोच करेंगे तभी हमारा जो है रैंक आ सकता है, अदरवाइज ऐसा रैंक नहीं आ सकता। सॉल्व करने को तो कोई भी कर सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, और 4t स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने बोला था कि हमेशा इसको किस फॉर्म में बनाएंगे, t स्क्वायर बाई 2 के फॉर्म में बनाएंगे। किस फॉर्म में बनाएंगे, t स्क्वायर बाई 2 के फॉर्म में बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, t स्क्वायर बाई 2 के फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखेंगे 4 इंटू 2 टी स्क्वायर बाई 2, तो इसको क्या हो जाएगा 8t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ चुकी है 8 आ चुकी है। तो सबसे पहले निकालते हैं क्या k इज व्हाट, लिमिट s टेंडिंग टू 0 व्हाट, s स्क्वायर इज कैंसिल हियर, फार्मूला देखा था मैंने s प्लस 1 अपॉन व्हाट, s स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ s स्क्वायर s प्लस 10, क्या कैंसिल हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। इफ आई पुट s इक्वल टू 0 10 अपॉन 10 दैट इज 1। ओके, देन स्टेडी स्टेट एरर इज व्हाट k की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पे 8 है, 8 अपॉन 1, देन स्टेडी स्टेट एरर इज 8 हियर। क्वेश्चन इज गिवन हियर स्टेडी स्टेट एरर फॉर द यूनिट स्टेप इज व्हाट 0.1, डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द सेम सिस्टम एंड फॉर फॉल्स इनपुट। मीन्स क्वेश्चन क्या गिवन है, यूटी के लिए क्या दिया है, स्टेडी स्टेट एरर क्या गिवन है 0.1 गिवन है। ये जो सिस्टम है, सिस्टम में अप्लाई किया था, और सेम सिस्टम है S1 है, बट यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या होगी, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करूँ, यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर आ चुका है। सपोज ये पल्स इनपुट है तो इसको यूनिट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये सिग्नल सिस्टम में बात हो चुकी है। डायरेक्ट लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, अपवर्ड साइड जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, तो 10 UT। अगेन यहाँ पे 2 पे कितना डाउन हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है 10 आया तो -10 UT -2। ठीक है, इतना आइडिया होना चाहिए, नहीं आइडिया तो सिग्नल सिस्टम वाला लेक्चर आप देख सकते हो। 10 कॉमन कर लिया मैंने, UT
-10, यहाँ पे ई t-2 हो गया, ठीक है, 10 कॉमन हो चुका है। दिस इज द इनपुट हियर। ओके, हम भी बता दूँ, इसके लिए स्टेडी स्टेट एरर की जो वैल्यू आई थी, और इसके लिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना, स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है, फिर क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका माइनस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस लेंगे, वही क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर फॉर दिस पल्स इनपुट। और इसके लिए आ चुका है, इसकी वैल्यू क्या है, 0.1 है। हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, ut-2 के लिए कैलकुलेट करना है। अगर मैं सिंपली बात करूं तो स्टेडी स्टेट एरर का फार्मूला क्या मैं बोला था, लिमिट s टेंडिंग टू 0 SRS, RS मीन्स व्हाट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। इसका मैं लाप्लास लूँ तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूँ, और इसका लाप्लास लूँगा तो 1/s एंड e⁻²s अपॉन s हो जाएगा, और 1 प्लस व्हाट GS। ये किस टाइप के इनपुट की बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारे किसके लिए, यूनिट स्टेप इनपुट की बात कर रही है। हमें बता दें यहाँ पे s कॉमन लेंगे तो s कैंसिल हो जाएगा, s कैंसिल हो जाएगा। अगेन वी इफ आई पुट हियर s इक्वल्स टू 0 तो ये 1 रहेगा, और यहाँ से 1 - 1 होगा तो अगेन इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर होगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से s कॉमन करेंगे, s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, और यहाँ पे e⁻⁻0 पुट करूँगा, 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो सिंपली कहने का मीनिंग क्या है, सिंपली समझो। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, सपोज यूटी के लिए क्या ग्राफ रहा होगा, मैं कई वे में समझाना चाह रहा हूँ इसको। सपोज ये सीटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट स्टेप अप्लाई किया तो 1, तो मैंने जब यूटी अप्लाई किया तो यहाँ पे एरर कितनी आती, 0.1, तो कुछ ऐसे ही रहा होगा। यहाँ पे क्या रहा होगा, 0.1 आ रहा होगा। मैं जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करूँगा किसका, CT इक्वल्स टू u(t-2), तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये तो यही होगा। बट t-1 है तो डिले है, प्लस होता है तो इस साइड चला जाता, t-2 है तो ऐसा ही है, बट हमेशा जो है ये अगेन हो जाएगा। अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग, 0.1 ही होगा। देखो ग्राफ को शिफ्ट करने से, लेफ्ट या राइट शिफ्ट करने से, हम t टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे चेक करेंगे तो एरर की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं है शिफ्ट एडवांस या डिले करने से, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0.1 आ रहा है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू 0.9 रही होगी। तो यहाँ पे भी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, 0.9 ही रहेगी, ठीक है। इसको शिफ्ट कर दो, कहीं भी शिफ्ट कर दो, तो इसका भी एरर की वैल्यू क्या रहेगी, 0.1, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एरर की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कहने का सिंपली मीनिंग यही समझो, जब भी पल्स टाइप इनपुट रहेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे स्टेडी स्टेट एरर इज व्हाट, 0, क्योंकि जो एक यूटी की वजह से आएगा ये उसमें डिले करने के बाद भी क्या रहेगा, वही आएगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। इस पे क्वेश्चन कुछ और करेंगे, ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर पे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।